हमारे पास कुछ शिव पुराण से कुछ श्रुत्र हैं और शरमंदा जब मैं क्लास ख़त्म करूँगा तब वो पढ़ेगी। 6 स्टेंजा हैं, बहुत अच्छे स्टेंजा हैं। चिदानंद रूपम वो आपको बताइए अभी। हरे कृष्ण। तो अभी टेक्स्ट 32 है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नशुप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टुकी। स्कंद 1 अध्याय 15 टेक्स्ट 32। निशाम्या भगवान् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निर्भृतात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निर्भृतात्मा युधिष्ठिरः। वर्ड मीनिंग, निशम्य कहकर भगवता भगवान के विषय में, मार्गम भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के रास्ते, संस्थाम अतः अंतः, यदुकुलस्य राजा यदु के वंश का, च भी स्व भगवान का धाम, पथाय रास्ते में, मतिम इच्छा, चक्रे ध्यान दिया, निवृत्त आत्मा अकेले एकांत युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर ने। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तात्पर्य, अगर आप लोग मदद कर सके पढ़ने में, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, एनीथिंग। हरे कृष्णा। तात्पर्य, শিলা প্রভুপাদ কি জয়। এই পৃথিবীতে জনগণের সামনে থেকে ভগবানের অপ্রকট হওয়ার কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার উপদেশে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। এই জগতে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার পরম ইচ্ছার উপর। সাধারণ জীবের মতো তার আবির্ভাব এবং তিরোভাব প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হয়ে কোনো উন্নত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। তিনি তার ইচ্ছা অনুসারে অন্য কোনো স্থানে তার আবির্ভাব কিংবা তিরোভাব ব্যাহত না করেও যে কোনো স্থানে যে কোনো সময় আবির্ভূত হতে পারেন। তিনি সূর্যের মতো, সূর্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদিত হয় এবং অস্ত যায় এবং তার ফলে অন্য কোনো স্থানে তার উপস্থিতি ব্যাহত হয় না। পশ্চিম গোলার্ধ থেকে অন্তর্নিহিত না হয়েই সূর্য সকালে ভারতবর্ষে উদিত হতে পারে। সৌরমণ্ডলের সর্বত্রই সূর্য সর্বদাই বিরাজমান, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোনো স্থানে সূর্য সকালবেলা উদিত হচ্ছে এবং কোনো বিশেষ সময়ে সন্ধ্যাবেলায় অস্ত যাচ্ছে। সূর্য সময়ের অপেক্ষা করে না। সুতরাং সূর্যের যিনি স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা আর বলে কি হবে। আর কেউ পড়বে? সুজন প্রভু পড়বেন? জীবন বিট্টল প্রভু। Prabhuji, which this one? Which is the English? প্রভু শ্লোকা নাম্বার কত? Yeah, 1.32. Shall I start? জীবন বিট্টল প্রভু। Therefore, in described in Bhagavad Gita, that is the middle of the Hare Krishna, purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is stated that anyone who actually understands the transcendental appearance and disappearance of the Lord by his
inconceivable energy becomes liberated from the laws of birth and death and is placed in the eternal spiritual sky where the Vaikuntha planets are. There, such liberated persons can eternally live without the pangs of birth, death, old age, and disease. In the spiritual sky, the Lord and those who are eternally engaged in the transcendental loving service of the Lord are eternally young because there is no old age and disease and there is no death. Because there is no death, there is no birth. It is concluded, therefore, that simply by understanding the Lord's appearance and disappearance in truth, one can attain the perfectional stage of eternal life. Therefore, Maharaja Yudhishthira also began to consider going back to Godhead. The Lord appears on the earth or any other mortal planet along with his associates who live with him eternally. And the members of the Yadu family who were engaged in supplementing the pastimes of the Lord are no other than his eternal associates. And so, also Maharaja Yudhishthira and his brothers and mother, etc. Since the appearance and disappearance of the Lord and his eternal associates are transcendental, one should not be bewildered by the external features of appearance and disappearance. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान् विद्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णुपदाय पताकसमनिधि नामने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायने गौरकथा दामोदाय नगर धाम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णुपदाय श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सुरदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय शिल प्रभुपाद जय गुरुदेव। निशम्य भगवान मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मति चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः। Now, Sutta Goswami is informing to the sages Naimisaranya that after hearing, oh, अच्छा हिंदी में बोल रहे हैं तो सौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं सूत गोस्वामी से कि जब अर्जुन के वचन को सुनकर उनको ज्ञात हुआ, उनको बोध हुआ कि कृष्णे स्वधामोपगते और साथ में यदुकुल के लोग भी चले गए, तो उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। यानी जब तक भगवान थे मैं भगवान की सेवा में संलग्न था, अब भगवान नहीं तो मुझे सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, तो हम जी के क्या करेंगे। भक्त सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन भक्ति से वियोग, भगवान से वियोग सहन नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज वो व्यक्ति थे जिनका कोई शत्रु नहीं था, यानी अजात शत्रु शांत वह साधव साधुभूषण। युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी अपने पूरे जीवन काल में किसी को भी अपना शत्रु नहीं माना। लोगों ने माना हो, दुर्योधन ने माना हो, शकुनि ने माना हो, कर्ण ने माना हो, द्रोण ने माना हो, औरों ने माना हो, शल्य ने माना हो, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं माना। यानी कि जब पूरे 99 कौरवाज मर चुके थे और दुर्योधन एक कुंड के नजदीक लेटा हुआ था, सांसें चल रही थी, युधिष्ठिर महाराज आए, बड़ी करुणा की
बोले, ये छोटे भाई, मैं तुम्हें पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूं। और भगवान कृष्ण हाथ पर रह गए। 1,660,000,020,000 पीपल आर किल्ड एंड ही इज सेइंग मैं तुम्हें राज्य देने के तैयार हूं। भगवान हतप्रस्त रह गए, ये क्या? क्योंकि वो सबको अपना सुहृदय मानते थे। तो दुर्योधन को बोला, कोई तुम्हारी युक्ति है कि तुम ये राज्य पा सको? तो दुर्योधन के मुंह में विनाशकाले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन के मुंह में आया, हां, मैं आखिरी युद्ध भीम से करना चाहता हूं। और युधिष्ठिर ने कहा, अगर तुमने भीम को हरा दिया, यह सारा राजपाट तुम्हारा। अब भगवान ने सोचा, क्या करूं? इतना सत्यवादी आदमी है कि इसकी कोई चलती नहीं है। तो भगवान ने बोला, ठीक है, जब बड़े भाई कहते हैं तो मना थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब इन युद्ध को हो रहा था, तो भीम को भगवान कृष्ण ने याद दिलाई कि तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि 13वें साल के आखिरी दिन तुम उन जंगों को तोड़ोगे जिस पर उसने द्रौपदी को बैठने का आह्वान किया था, याद है ना? और उसको गुस्साया और उसकी जांघें तोड़ डाली। जब यह कार्य हो रहा था, अचानक तब वहां बलदेव आ पहुंचे और बलदेव ने देखा यह युद्ध के विपरीत है। उनको बहुत गुस्सा आया, वो भीम को मारने दौड़े। कृष्ण ने रोक लिया कि आप कौन से अधर्म की बात कर रहे हैं? पूरा महाभारत से पहले जब से इन पांडवों का जन्म हुआ है, अधर्म की ही जीत हुई है। आज धर्म की जीत होने दो। और बलदेव जी ने अपना गुस्सा शांत किया। सो ऐसे युधिष्ठिर महाराज, जिन्होंने एक छोटा सा झूठ नहीं बोल पाया, कि भगवान ने कहा था कि देखो, जब तक द्रोण के हाथ में धनुष और बाण है, तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो ऐसी युक्ति चाहिए कि उनके हाथ से धनुष बाण गिर जाए, रणस्थल हो और धनुष बाण गिर जाए तो हमको मार सकते हैं। तो सबने कहा, क्या करना है, क्या करना है? तो युधिष्ठिर के पास गए कि तुम्हें झूठ बोलना है। युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या झूठ बोलना था? युधिष्ठिर कहा गया कि तुम इतना बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, बस इतना बोलना है। और जैसे ही ये खबर सुनेंगे, द्रोण अपने हाथ से धनुष बाण त्याग देंगे और अर्जुन को मैं कहूंगा कि तुम इनकी सुगति करो। युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर तैयार हुए, लेकिन बोले मैं अपने शब्द में बोलूंगा। तो जैसे खबर पहुंची, दूसरे दिन खबर पहुंची कि अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणा अपना रथ लेकर युधिष्ठिर के सामने आए, बोले, युधिष्ठिर सच बोलना कि अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने कहा, नर मरो या कुंजरो अश्वत्थामा गतो गतः। यह तो मालूम नहीं है वो नर था या हाथी था, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। कितना झूठ बोला, बहुत छोटा झूठ बोला। और ये झूठ के लिए युधिष्ठिर को जो है पाताल लोक से जाना पड़ा स्वर्ग, एक छोटे से झूठ के लिए। और देखो हम कितना झूठ बोलते होंगे, कितना झूठ हम बोलते हैं हर दिन हर समय, अपने बॉस से, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से। तो हम कैसे जाएंगे? नर मरो या कुंजरो अश्वत्थामा गतो गतः, एक छोटे से झूठ है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन चलो इतनी बेमानी कर लेता हूं कि मैं बोला भाई मरा तो अश्वत्थामा मरा है, अब ये पशु हो, ये हाथी हो या आपका लड़का, ये मुझे नहीं मार। और जैसे ही द्रोण ने अपना धनुष और बाण छोड़ा, अर्जुन के बाणों से उनको वीरगति प्राप्त हुई। तो युधिष्ठिर राज कह रहे हैं कि भगवान नहीं है तो मैं क्या करूं? लेकिन क्या आप और हम ये कार्य कर सकते हैं? हमें मालूम भगवान यहाँ नहीं है, तो क्या हम सब छोड़कर चले जाएं? नहीं। श्रीमद् भागवतम कहती
एतान्य निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णीताम हरे नामानुकीर्तयन। हमारे लिए, क्योंकि विदुषी की तरह ये नहीं छोड़ सकते हैं, आत्मदाह नहीं कर सकते हैं, आत्मत्याग नहीं कर सकते, हमारे लिए है एतन्य निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम। अगर आपको अभय होना है, अभय रहना है, योगी नाम निर्णीताम, योगियों ने और राजाओं ने इस निर्णय पर पहुंचे हैं क्या? हरे नामानुकीर्तयन, हरि के नाम का कीर्तन करें, हम अभय हो सकते हैं। तब भगवान ना होने पर भी हम भगवान के साथ होंगे। ये बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारे भक्त तो निकल सकते हैं। भक्तों को क्या करना चाहिए? हम जैसे क्या करना चाहिए? जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। हमारा आसन सही होना चाहिए, हमारी श्वास प्रतिक्रिया, हमारा संग, हमारे इंद्रियों में कंट्रोल होना चाहिए। स्थूले भगवते रूपे, और भगवान का जो स्थूल शरीर है दिन अपने दिल में रखकर उनका नामानुकीर्तन करना चाहिए। नहीं तो बिना भगवान के ये जगह रहने वाली नहीं है। युद्धम ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप जा रहे हैं तो लोग आपको कैसे पहचानेंगे, कैसे आपकी सेवा करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? तो भगवान ने बहुत शानदार कहा, शैली दारुमही लोही लेप्या लेख्या च शौकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृतः। हे उद्धव, मेरे को लोग डीटी फॉर्म जो 8 प्रकार की होती हैं, स्टोन, पत्थर, वुड, लकड़ी, मेटल, धातु, अर्थ, क्ले, पेंट, पेंटिंग, सैंड, सैंड में, माइन में और ज्वेल में, अष्टविधा है। साली दारुमही लोही लेप्य च शौकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृतः। इस प्रकार तुम मेरा ध्यान कर सकते हो, तुम मेरे में समा सकते हो। जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय मन स्थूले धीरे संधारय धिया। तो कली के जैसे आज हम कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने अब फैसला कर लिया कि जब भगवान की सेवा नहीं तो रहने का अधिकार नहीं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। चलिए मैं टेक्स्ट 33 ले लेता हूँ। बोलेंगे तो बहुत कुछ है लेकिन फिर पीछे रह जाएंगे। पृथा अपि अनुसृत्य धनंजयोदितं नासाम यदूनां भगवद्गति चताम एकांत भक्त्या भवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृते। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धीन होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार से आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। Purport, I will tell Sarabanya to read. हरे कृष्णा मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तात्पर्य, सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वह भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस तरह महाराजा युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतएव वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिसमें वर्तमान भौतिक शरीर को
त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है। और मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने यही किया। हरे कृष्णा। तो माता कुंती, उन्होंने भी सुना जो युधिष्ठिर महाराज ने सुना, अर्जुन के वक्तव्य को सुना और उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि अब हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी। ये वही कुंती है जो कहती है नमस्ते पुरुषमाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। ये वही कुंती है जो सब कहती है भगवान अंदर और बाहर दोनों जगह हैं, लेकिन आज उनको पता चला कि अब बाहर भगवान बाहर नहीं है तो अंदर कौन ढूंढे, चलो भगवान के धाम को चले जाए। देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान देवकी और वसुदेव के घर में क्यों आए, क्या रहस्य था, इनको मालूम था। जब ओखल बंधन की लीला हुई तो उस वक्त कुंती वहां मौजूद थी। कुंती अपने आंखों से देखा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कितनी शानदार स्तुतियां कुंती ने की है, लेकिन आज उनका मन जो है भर आया है कि भगवान नहीं, और जब भगवान नहीं तो हम क्यों। भक्त क्या करते हैं, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मृतां सुपर्गते गुणास्ते गृणीत वाकं कर्म करोतु काय। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मृतां सुभगतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायम। इंग्लिश में ट्रांसलेट पढ़ता हूं मैं। ओ माय लॉर्ड, O Supreme Person of Godhead, will I again be able to be servant of your eternal servants who find the shelter only in a lotus feet? Dasanudaso bhavitasmi bhuya. Will I ever be able to get the association of your pure devotees? Very, very difficult. और जो कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो देहानां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वायोरिव तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। दुर्लभो मानुषो जन्मो देहानां क्षणभंगुरा। लेकिन ये देह जो है ना, ये क्षणभंगुर की है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप 100 साल डिवाइड बाय 8.4 मिलियन स्पीसीज, क्या परसेंटेज आता है? तो इतनी ये परसेंटेज हमारी लाइफ है। 100 डिवाइड बाय 8.4 मिलियन क्या परसेंटेज है? और इसमें हम कहते हैं अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम बलवान, हम सुखी। कितना अहंकार है हमको। लेकिन यहां क्या बोलते हैं, दुर्लभ मानुषो देहो देहानां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये। लेकिन उससे ज्यादा दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिनको वैकुंठ प्रिय है या जो वैकुंठ के प्रिय है, यानी वैष्णव, वो बहुत मुश्किल है।
सो दासानुदासो भवितास्मि भूय। क्या कभी हमें भक्तों का संग मिलेगा? इच्छा है, क्यों नहीं मिलेगा? मिलता है। कौन देने वाला? भगवान देने वाले। कौन अरेंज करता है? भगवान अरेंज करते हैं। हमें तो सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा हो तो सब कुछ मिलता है, लेकिन इच्छा ही ना हो तो क्या किया जाए? मनो स्मृताम सुपगतेर गुणास्ते, मैं अपने मन में तुम्हारे गुणगान करता रहता हूं। वाक कर्म करो तो काया, और अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से आपका ध्यान करते रहता हूं। तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान कहते हैं मैं सबसे सुलभ हूं, सबसे सुलभ। क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। भगवान को प्रकट होने में सेकंड भी नहीं लगते हैं। भगवान कभी हमारे रक्षक बन जाते हैं, कभी हमारे दर्शक बन जाते हैं। तो कुंती माँ ने भी सोचा अब क्या? उनको मालूम है ये शरीर तो क्षणभंगुर है, लेकिन अब देर क्यों? अपने धाम जाया जाए। भगवान के भक्तों की अब जो है संगति की जाए। बहुत हो गया राजमहल, बहुत हो गया राजपाट। कहते हैं लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। जैसे जैसे हमारे पास धन संपदा आने लगती है, प्रभु हमसे उतने दूर हो जाते हैं। अच्छा पैसा आ गया, अच्छा बिजनेस चल पड़ा, अच्छे दोस्त मिले, उसके बाद भगवान और दूर होते चले जाते हैं। हमें समझते हैं कि जो लड़का, जो ये लड़की जो है IIT पास है, BIT पास है, वो भक्ति कर सकते हैं। वो आलू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला कैसी भक्ति करेगा? जो पढ़े लिखे हैं वही भक्ति करते हैं, अनपढ़ क्या भक्ति करेगा? कौमारम आश्रित प्रज्ञो धर्मान भागवतामिहा। हमें अपने बच्चों को शुरू से ये शिक्षा देनी है कि हम कौन, हम क्या, कैसे जीवन गुजारना है। तो तासानुदासो भवितास्मि भूय। अगर हमारी इच्छा हो कि भगवान के जो दास हैं उनके दासों का मैं दास बनूं, तो हमारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और आत्मसंतोष। पैसे से आत्मसंतोष नहीं आएगा। मेरे पास कितने फ्लैट हो नहीं आएगा, कितनी बढ़िया कार हो संतोष नहीं आएगा। संतोष तब आएगा जब भगवान की कृपा हो और भगवान की याद हो। और भगवान की याद करने कितना आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, गाते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जयपतना का स्वामी गुरु महाराज ने हमें कहा ये चांट करने में कतो दाम लागे नहीं। चांट करने में कतो दाम लागे नहीं, फ्री में है, फ्री में मिला, फ्री में इस्तेमाल करो और फ्री में दो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम तो अड़ियल है ना, अड़ गए तो अड़ गए। हम क्या करते हैं, अरे अब टाइम ज़्यादा हो गया, अब वो मेरी चांटी छूट गई, मैं तो सुबह नहीं कर पाया ना, मेरी चांटी छूट गई। तो क्या पड़ने वाला? चांटिंग पूरी तो करो। और हम बड़े फक्र से कहते हैं मैं तो 16 से ज़्यादा चांट करता हूँ। आप कीजिए, करना चाहिए, उनको गिनिए मत। 16 से ऊपर आप जितनी करते हैं करो, जितनी मर्जी करो, उनको गिनो मत। गिनो 16 ही कि आज मेरी 16 माला हो गई। चाहे आप दिन भर चांट करो, चाहे भी 64 माला हो, 128 माला हो, गिनो 16। क्यों? प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला कीजिए, बस, उससे आगे नहीं। लेकिन कभी हम बोलते हैं ना कि भाई वृंदावन में तो 64-65 तो हो ही जाती हैं, ये होती नहीं है, हमारा अहंकार बोला भाई 16 कीजिए और दिन भर कीजिए, 16 ही गिनिए, उससे आगे नहीं, तभी तो आनंद है। लेकिन हम क्या करें, बिना अपनी बढ़ाई के रह नहीं सकते।
आपको पता तो चले मैं 64 माला रोज जाप करता हूँ, नहीं आपको कैसे पता है बड़ा भक्त है? बताने के लिए। और ऐसा, और मैंने तो काफ़ी प्रोफेशन किए प्रभु जी। वाह, अच्छा, बहुत किए। तो क्या हुआ? प्रभुपाद ने पूरा जीवन झोंक दिया। तुमने एक महीने में 1 घंटा, एक हफ्ते में 1 घंटा, बहुत बड़े जो है अपने बाजे बजा रहे हैं कि मैंने श्रीमद् भागवतम दी। कौन सी बड़ी बात है? और क्या कर रहे हो ना, जो लिखा हुआ है तो बोल रहे हो। हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? वही बोलना। लेकिन बोलना तब सार्थक है जब हम अपने जीवन में उसको धारण करें। बोलना चाहिए, श्रवणम कीर्तन हम कल हम बता रहे थे, करना है। लेकिन अगर अपने जीवन में धारण नहीं किया तो अभिपक्व कषायाणम, क्या फायदा हुआ? तो श्रीमद् भागवत गीत सुनने को हमें मिलता है कि ये तो करो। कहते हैं मरने से पहले कुछ तो कर, मरने से पहले कुछ तो कर। एक दादू हुए, बहुत बड़े कवि थे। वो लोगों को बोलते थे कि भाई भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। जब उनकी वृद्ध अवस्था आ गई तो उन्होंने चैंटिंग बंद कर दी। तो लोगों ने कहा दादू लोगों को बड़ी शिक्षा देते थे, अब क्या हुआ? तो दादू बोलने लगे कर जपे मन जपे न, कर जपे मन जपे जीव्या जपे न राम। बोला अच्छा, तो फिर मेरा भजन श्री राम करें मैं पायो विश्राम। अब मेरा भजन तो भगवान करते हैं भाई, मैं तो नहीं कर पाता हूं। जब अवस्था ऐसी आ जाती है, ये तभी हम कह सकते हैं जब हमने अपने यौवन में भक्ति की हो। और यौवन कब? आज जब मैं सांस ले रहा हूं, आज जब मेरा मन स्थिर है, मेरा ये यौवन है। बुढ़ापा शरीर को मिलता है, मन और बुद्धि को बुढ़ापा नहीं मिलता है। तो अपने यौवन में हमें ये भक्ति करनी है। ये नहीं कि अब शरीर बूढ़ा हो गया तो मन तो नहीं बूढ़ा हुआ ना, दिल तो नहीं बूढ़ा हुआ, विचार तो नहीं बूढ़े हुए, शरीर बूढ़ा हुआ तो क्या फर्क पड़ने वाला? चांटिंग फिर भी करनी है। नहीं तो कर जपे मन जपे जीव्या जपे न राम, मेरा भजन श्री राम करे मैं पायो विश्राम। तो आज हमने युधिष्ठिर महाराज की मनोदशा सुनी, कुंती की मनोदशा सुनी, और इन्होंने निर्णय लिया अब ये भी इस को त्याग कर योग में लिप्त होकर भगवान के स्वधाम चले जाए। तो हरे कृष्णा, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आज जैसे मैंने कहा कि शिवरात्रि है, और आज सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मालूम होगा जो शिवगण होते हैं जनरली वो भांग धतूरा बहुत कुछ पीते हैं, लेकिन शिव पुराण हो या भागवतम पुराण हो या कोई और पुराण हो, कभी नहीं सुना कि भगवान शिव ऐसे धूम्रपान करते थे, कभी नहीं सुना। लोगों की आस्था है, अपनी अपनी आस्था है, क्या किया जाए। लेकिन हमें शिव से क्या लेना है? देखो, जब शिव ने जहर पिया तो अपने गले में अटकाया, क्यों? उनको मालूम था मेरे हृदय में मेरे भगवान हैं, अगर जहर अंदर गया और भगवान मर गई तो उन्होंने कंठ में रख दिया, नीलकंठ बने, लेकिन अंदर नहीं जाने पाए। तो किसी ने कहा अरे यार शिव जी ने विष पी लिया है, पता नहीं उनकी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। सब देखने गए तो शिव जी आनंद में लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे। तो लोगों ने कहा क्या, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोला पहली बार मैं भगवान के काम आया हूं, 2 काम आया हूं। एक तो उन्होंने मुझे विष पीने के लिए कहा, मैंने पी लिया, लेकिन इसके बाद मैंने पेट में नहीं उतारा क्योंकि बेचारे खुद मर जाते। तो भगवान को मैंने आधा काम किया। तो ऐसे हमारे भोले भंडारी। लेकिन जिस किसी ने, अगर आपने परिचय की बात कीजिए, श्रीमद् भागवतम के 4थे अध्याय के 4थे स्कंद के 24 अध्याय अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम है कि शिव किस से प्रसन्न होते हैं। शिव कृष्ण भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए एक शिव पुराण से कुछ स्तुति है, मैं श्री बंदे को बोलूंगा वो पढ़ें।
उसके बाद आप लोग फिर इसमें विवेचना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले सभी भक्तों को हैप्पी शिवरात्रि का पावन पर्व दिन और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मनो बुद्धि अहंकार चितानि नाहं न च श्रोत्रजिह्ने न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न तो मनो न बुद्धि न अहंकार न ही चित हूँ। मैंने तो मैं न तो कान हूँ न जीव न नासिका न ही नेत्र हूँ। मैं न तो आकाश हूँ न धरती न अग्नि न ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु न सप्त धातु न वा पंच कोशा न वाक् पाणि पादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न प्राण हूँ न ही पंचवायु हूँ। मैं न 7 धातु हूँ और न ही 5 कोश हूँ। मैं न वाणी हूँ न हाथ हूँ न पैर न ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझे घृणा है न लगाव है न मुझे लोभ है और न मोह। न मुझे अभिमान है न ईर्ष्या। मैं धर्म धन काम एवं मोक्ष से परे हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं पुण्य पाप सुख और दुख से विलग हूँ। मैं न मंत्र हूँ न तीर्थ न ज्ञान न ही यज्ञ। न मैं भोजन भोगने की वस्तु हूँ न ही भोग का अनुभव और न ही भोगता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर्मित्रं गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मुझे मृत्यु का डर है न जाति का भेदभाव। मेरा न कोई पिता है न माता, न ही मैं कभी जन्मा था। मेरा न कोई भाई है न मित्र न गुरु न शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुक्त्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासंगतं नैव मुक्तिर्मेया चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। न मुझे किसी चीज में आसक्ति है न ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। हरे कृष्णा।